जी, बिस्मिल्लाह। How are you? Hope you are fine. Are you listening my voice? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, आवाज आ रही है आपको? तो हम चलते हैं अपने। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन प्लानिंग में एजुकेशनल कंसंट्रेशन क्या है, राइट? Okay, thanks. Let's start. Since today's topic is education concentration in education planning, therefore it seems important to discuss what is education. As you know, education means a positive change in behavior, but technically we said that the process of receiving and giving systematic instruction, especially at school or university, right? This is called education. So education in general sense is a form of learning in which knowledge, skills, and habit of a group of people are transferred from one generation to the next through teaching, training, research, right? This teacher and training and research for tertiary education. Because education cover all the phases, therefore we should try to, and training pertains to that where we need technical subjects, right? So education frequently take place under the guidance of other. Now today we will discuss, we try our best to understand the in-depth meaning of education, right? Till now we are discussing education surfacely. Apparently, education seems a systematic and formal system where society deliberately constitute institutions to impart knowledge to their upcoming generation. And the purpose to impart knowledge is basically to train them for future challenges as well as preservation preservation of their cultures, their norms, and translation of these cultures and norms to their upcoming generations. Right? As we discussed earlier, that education is a continuous process, and the process of the education
is facing new challenges day by day due to a number of factors, right? Like social factors, political factors, economical factors, the demand of the society, the change factors, as well as technological factors, and lastly, global factors. These are those aspects which directly or indirectly put pressure on the educationist, planner, and managers to try to mold their behavior according to the current situation, according to the demands, according to the trends of the society as well as global trends, right? Philosophically, education covers a number of aspects. Like, let's see if there's something for us that aim and objective of education. So, in long terms, the aim of education is ethically, social, patriotic, ideological features, right? ठीक है, लॉन्ग टर्म में एजुकेशन की देखिए, एजुकेशन मैंने आपसे शुरू में कहा था एक लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन में hefty इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, एजुकेशन में इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है, एजुकेशन में ग्लोबल फोर्सेस का इंटरेस्ट है, एजुकेशन में प्रेशर ग्रुप्स का इंटरेस्ट है, राइट? सो एजुकेशन वो चैलेंज है जिस पर नंबर ऑफ प्रेशर्स आ रहे हैं, लेकिन जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है टू चेंज द बिहेवियर, चेंज द माइंडसेट, change the pattern of thinking, right? So in long terms, the aim of education is ethical, which means we want to develop a culture where social norms, customs, trends which had been practices from since long time. So everybody, every citizens, every society desires to protect these norms and cultures, and we want to inculcate our upcoming generations to preserve these specific cultures, right? Like their language, like their costumes, libas, their eating, living habits, right? So ethical consideration. We should try to give respect to our family relationship. We give priority our family, right? A strong family system is required if we think in context of our culture, right? So लॉन्ग टर्म में एजुकेशन के प्रोसेस में एथिकली हमने अपने बच्चों का इखलाक बेहतर करना है। पहला हमारे लिए चैलेंज ये है, ठीक है? हम कहते हैं कि हमने अपने बच्चों में तमीज पैदा करनी है। तमीज क्या चीज होती है? इखलाक क्या चीज होती है? द वे ऑफ टॉकिंग, हिज बिहेवियर, हिज एक्शंस, राइट? हाउ ही टॉक, how he behave, how he ate, how he learn, how he sleep, how he wake, how he sit, right? How he give priority to his relationship, how he behave with his elders, with his parents, with his teachers, in the society. So all these things pertains to ethicals, right? Then in long term, if we succeed to create ethically strong generation, it's ultimately affect the social bonds. Society will develop automatically if we succeed to inculcate ethical values in our students, right? So this ethical is strongly connected to our social bonds,
to our society, right? And then the long-term objective of any education systems, including Pakistani education systems, is to create patriotism in our student. Patriotism means love with his motherland, right? This love of motherland creates sense of patriotism, and this patriotism also part of our education policies, right? Patriotism means not only respect the relationships but also respect for that particular land where we live, right? So patriotism create patriotism. This patriotism basically the identification of a specific area. The people are living in specific area. So this patriotism is basically the love of the people to their homelands and for the safety and security of their land. They even willing to sacrifice their lives, right? Even we said that shahadat, right? इरम ये जो आप कर रही है सारी लर्निंग पहले हो तो मुझे बताओ बच्चे में तुम पेट्रियाटिज्म कैसे पैदा करोगी? उसे तो पेट्रियाटिज्म का मतलब ही नहीं पता, ठीक है ना? प्री स्कूल में उसको क्या बताओगी? जमीन क्या होती है, माँ होती है माँ क्या होती है? एक प्री स्कूल के बच्चे में ये तमाम चीजें पैदा, आइडियोलॉजी कैसे पैदा करेंगे उसके अंदर? आइडियोलॉजिकल नेचर देखिए, मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है लॉन्ग टर्म। ये एक लॉन्ग टर्म है, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म्स में मैनरिज्म बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे की हमें जो है ना बदतमीजी भी अच्छी लगती है, ठीक है? तो फिर हमें लॉन्ग टर्म में आइडियोलॉजिकल उसकी सेफ्टी के नजरियात क्या है, नजरियात मीन बिलीव्स और माइंड। Then second aim of education is intellectual training. I said earlier that there are basically three domains of learning. According to Benjamin Bloom, an educationist who defined a child learns to three different domains, right? First is, he said, cognitive domain. Cognitive domain pertain to the development of intellectual qualities in the children, their intellectual training, right? Cognitive. And second, I said affective, that education which affect their behavior, right? As we said earlier, their ethics, social, patriotism, ideology, this pertain to their affective education. Education affect the behavior of the student. And third domain is psychomotor, which pertain to skills, right? That is trainability, educability, and trainability. So these three domains are embedded in the aim of education, खासतौर पे जो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एजुकेशन। लॉन्ग टर्म एजुकेशन हमारी ये है कि हमने बच्चे की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को पॉलिश करना है, राइट? सो दैट ही मे बिकम अ गुड member of the society, a patriotism, socially active citizen, right? All these things can create only through development of intellectual abilities. And this intellectual ability is also important because this child will be a man in future. And this man is guarantee of transformation of culture which we had transferred to him. Now it will be his responsibility to transfer these culture, ethic, norm, patriotism, ideology to the upcoming generations. And it is only possible through this intellectual training, right? So these are
and other aspect of education planning and management, where our challenge is how these these things create in a child within the limited resources, within the education infrastructure, within our contents, methodology, as well as our socio-political-economic scenario, right? So this is a big challenge for educational planner to cater for these objectives, these objective of those objectives which planner or leader know, right? Then what is the main aim of the education? The mental growth, emotional stability, spiritual development, physical development, and adjustment to society, right? These, every word has a minor and comprehensive detail. Like if we talk about mentally, it is the aim of education within education to develop the mental capabilities, develop student mentally. देखें, अगर आप बच्चे को, आप देखें, हम कर नहीं सकते अगर हम एक तजर्बा करें कि एक बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और एक बच्चे को किसी जंगल में छोड़ दें, तो आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ सर्टेन टाइम उसकी सोचने समझ, बल्कि वो बोल भी नहीं सकेगा, ही कांट स्पीक। और ऐसा हुआ दुनिया में, ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे उनको जंगलात से मिले जिनका रहन सहन जानवरों के साथ था, तो they can't speak because with a certain time, with the passage of certain time, their speaking qualities become obsolete. बोलने की, समझने की और इंसान की तरह हम बोलते हैं, समझते हैं, चलते फिरते हैं, ये कैपेबिलिटीज उसमें। तो हमने एक बच्चे की मेंटल ग्रोथ करनी है, सबसे बड़ा चैलेंज। अब मेंटल ग्रोथ में हमने एक कोई साइकोलॉजिकली देखना है। देखिए, पहले दिन जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त वो बोलना नहीं शुरू करता ना, 2 साल तक हमें उसकी बड़ी, 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक केयर करनी पड़ती है, राइट। उससे प्रैक्टिस कराते हैं माँ बाप कि वो छोटे छोटे अल्फाज को पहले बोलता है, राइट। फिर हम उसको इनकरेज करते हैं, हम उसे इंजॉय करते हैं, हम उसे मोटिवेट करते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स, लाफिंग, स्वीट्स देकर, गोद में उठाकर मोटिवेट करते हैं। वो बोलता है आस्ता आस्ता, और क्या बोलता है जो हम बोलते हैं, मज़े की बात भी है। इट्स मीन उसका माइंड ये सब कुछ परसीव कर रहा है, राइट। उसका माइंड सब कुछ परसीव कर रहा है, ये उसके माइंड के अंदर एक प्रोसेस चलता है, और वो जो पैगाम उसको मिलता है, राइट, वो उसको उसके एक्शन में, रिएक्शन में वो बात करने की कोशिश करता है। साइकोलॉजिकली यू आर प्लानर, आप देखते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ और साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठ के कि 3 से 5 साल के बच्चा जो होगा उसकी मेंटल ग्रोथ की कैपेसिटी क्या होती है, राइट। हम पहले देखें ना, बच्चों को अल्फाबेटिक्स पढ़ाते हैं, फोनीम और फोनेटिक्स, ए बी सी, हम उनको अल्फाबेटिक्स पढ़ाते हैं, फोनीम्स हैं, फोनेटिक्स हैं, राइट। जब वो ये छोटे छोटे बात सीखता है, फिर हम उसको, जिसे हम कहते हैं ना, तो जो सब, मैं इस मीटिंग में हूँ, अब थोड़ी सी फोकस बात कीजिएगा प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड थिंग इज इमोशनल। अच्छा, ये जो लफ्ज इमोशनल है ना, अब एक इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस।
अब दुनिया की सोच इंटेलिजेंस के लिए चेंज हो गई है, ये आपके लिए मैं आपको बता दूंगा। अब वो बंदा इंटेलिजेंट है जो इमोशनली स्टेबल है। अगर आप में से कुछ बच्चों को नहीं मालूम तो इस पर मुझसे जितनी बहस करना चाहते हो कर। इमोशनली स्टेबल पर्सन इज बिकम अ सक्सेस, नॉट इंटेलेक्चुअल बट इमोशनली स्टेबल पर्सन। ठीक है, जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कोई डजंट मैटर। बात सुनो, जो जो आपका हो ना, ओके स्टूडेंट्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, आप हैरान होंगे, आप पूछें कैसे सर, हाउ इट इज पॉसिबल कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से ऊपर चली गई। इमोशनली स्टेबल पर्सन, आप जब मैनेजर बनेंगे, एग्जीक्यूटिव बनेंगे, सीईओज बनेंगे, राइट? अच्छा, ये इमोशनल लेस और इमोशनल स्टेबिलिटी, मुबीन, इसको समझ लो बेटे। इमोशन का मतलब वो इमोशन ही जो तुम ले रहे हो। इमोशनली स्टेबल मीन आपके सामने कुछ सिचुएशन आती है जो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है, राइट? बिकॉज हमें सोसाइटी में काम करना है, इंसानों के साथ काम करना है, इंसान की नेचर मैन टू मैन डिफरेंट होती है, राइट? कभी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कभी आपको प्रॉब्लमेटिक लोग मिलेंगे, राइट? तो इमोशनली स्टेबल का मतलब होता है कि आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है इन द सिचुएशन विच गोज अगेंस्ट यू। ऐसा हालात जहां आप बेकसूर भी हैं, आपको आप इल्जाम भी है, एक सिचुएशन देता हूँ, आपका कसूर भी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां पे ये साबित होता है कि नहीं आपका कसूर था। आप इमोशनली स्टेबल होंगे, लोगों पर चीखोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, राइट? आपके खिलाफ लोग आपके मुंह पर बातें करेंगे, यानी ऑपोजिट होंगे, जिससे मैं बार बार आपको कह रहा था डेमोक्रेटिक वैल्यूज, राइट? डेमोक्रेटिक का मतलब वोट डालना सिर्फ नहीं होता। डेमोक्रेटिक वैल्यू मीन्स कि हम लोगों की बातों को बड़े गौर से सुनते हैं, राइट? हम दूसरे की ओपिनियन को सुनते हैं। और आज से तुम प्रैक्टिस करना सारे, ठीक है? जो बात आपको मालूम हो दूसरे की जुबान से दोबारा सुने, 100% चांसेस है आपको कोई ना कोई नई चीज मिलेगी। और मैं उसको अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव की जुबान में, मैं एजुकेशन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ ना, मैं पिछले 15 साल से एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहा हूँ, MBAs को भी पढ़ाता हूँ आपके साथ साथ, मैनेजमेंट वालों को। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सब्जेक्ट है, आप में से अगर किसी ने MBA किया हो तो उसको मालूम होगा, OB, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इमोशनली जो लोग स्टेबल होते हैं ना, जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सुनते हैं, दे आर गुड लिसनर। इफ यू डिजायर टू बिकम अ गुड लीडर, आप चाहते हैं कि एक अच्छे मैनेजर बने, एक लीडर बने, तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिकम अ गुड लिस्टर। खामोशी से मेहनत करो, गुड लिसनर बनो, देखो सक्सेस तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आएगी। डोंट शाउट, डोंट डिस्क्लोज योर एफर्ट्स एंड एक्शंस publicly, right? Don't show your actions publicly. Emotionally stable हो जाओ। तो आप इमोशनल स्टेबिलिटी को थोड़ा बहुत समझ गए हो, इमोशनली से क्या मुराद है, राइट? इमोशनल का इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे करोगे? मैंने आपसे कहा यू शुड बिकम अ वेरी गुड लिसनर। लिसन करो ना,
इसके लिए कुछ प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। दिस प्रैक्टिस विल बिकम योर हैबिट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अपने ऊपर एक्सपीरियंस करना सबसे मुश्किल काम है, राइट? बट when you become a good listener, और रिस्पांस उस वक्त करो जब जरूरत हो। आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप ये फील करेंगे कि लोग, यहाँ लोगों से मुराद आपके जो प्रोफेशनली जो आपके कोलीग्स हैं, वो आपसे बड़ी मोहतात होकर बात करेंगे। आपके लिखे हुए को, आपके सुने हुए को बड़े मोहतात तरीके से सुनेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करके देखें। When you are emotionally stable, मुबीन आपने क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आई, क्या लगते हो? सॉरी, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। फिर लोग कहते हैं कि आप क्या करते हैं? चस्के। अच्छा अच्छा, लोगों की देखो ना, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे ना यार। का मैंने ये ना, शुड बी बिकम अ गुड लिसनर। बात उस वक्त करो जब उसकी जरूरत हो, राइट? जब जरूरत हो तो बात करो, और इतनी परफेक्ट नपी तुली बात करो कि जो रूह तक उतर जाए, राइट? देखिए, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं ना, जब ट्रेनिंग किसी ट्रेनिंग अपने स्टूडेंट, अपने आप सारे इस वक्त ऑनलाइन है, अगर आप सारे फेस टू फेस बैठे थे तो कुछ स्टूडेंट बिल्कुल नहीं बोलते, खामोशी सुन रहे होते हैं। लेकिन जब वो एक आध सेंटेंस बोलते हैं ना, तो बाकी सारी क्लास की ओपिनियन एक तरफ, उसका एक सेंटेंस सबके ऊपर भारी होता है। ये तुम देख लो, आपके स्टूडेंट में भी ऐसा होता है, और आप हैरान हो जाएंगे। आप में से कोई टीचर है? आप में से टीचर है कोई? अच्छा, देखो, कभी ऐसा हुआ जिंदगी में कि किसी छोटे से बच्चे ने आपसे बड़ा अजीब गरीब सवाल पूछ लिया जिसका आप जवाब न दे सके? आपके साथ कभी ऐसा हुआ? क्या 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 ऐसा वाक्य हुआ कि यू आर आंसरलेस, a small child challenge your intellectual capabilities? उसने चैलेंज करके रख दिया तुम्हारी सारी तालीम तजर्बा। 3-4 साल के बच्चा चैलेंज करता है, मासूमाना सवाल पूछता है, आपके पास उसका जवाब नहीं होता। कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। कोई है आपके पास ऐसी एग्जांपल? जी बताइए, लिखिए। मुख्तसर लिखना। अच्छा जी, इमोशनल स्टेबिलिटी को थोड़ा बहुत समझ लेंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि आप अपनी इमोशंस को कैसे, इमोशंस का मतलब होता है जो तुम्हारे अंदर होता है, योर इनर सेल्फ। इमोशन मीन योर इनर सेल्फ है, आपकी इनर सेल्फ आपके इमोशन के थ्रू होते हैं, राइट? चलो आप देखिए, मैं आपसे एक सवाल, आप 1 मिनट के लिए मेरा सवाल सुन लो, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। इस लेक्चर के आखिर में उसका जवाब देना है, ठीक है? पूछो सवाल आप। एक छोटे से बच्चे का सवाल जब उसने पूछा, एग्री, पूछो सवाल आपसे। ओके, वन ऑफ baby of 3.5 year, baby 3.5 year, इसे आप प्री प्री प्रेप कहते हैं ना, प्रेप कहते हैं, मॉन्टेसरी कहते हैं।
शी आस्क्ड, अच्छा, शी आस्क्ड टीचर, उसने अपने टीचर से पूछा, उस बच्चे ने, कि मैडम, लड़के और लड़की में क्या डिफरेंस होता है? एक छोटी सी बच्ची अपने टीचर से पूछती है, 3 साल, 3 साढ़े 3 साल या 4 साल की बच्ची है, वो अपने टीचर से पूछती है कि मैडम, लड़के और लड़की में क्या फर्क होता है? इस बच्चे की रियलिटी देख लो और क्लास देख लो, और मैडम है वो क्या जवाब देगी, आप सबने लिखना है, हम आखिर में इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। स्पिरिचुअली, हमारा एम ऑफ एजुकेशन जिस्म के साथ साथ रूह की है। रूह मीन बेसिकली, इसका बेसिक ताल्लुक आपके एथिक्स से है, राइट, और पॉजिटिव बिहेवियर से है। फिजिकल डेवलपमेंट, आपने एजुकेशन के साथ साथ तरक्की भी तो करनी है ना मुआशरे में। तो एम ऑफ एजुकेशन ऐसा है कि हम क्रिएटिव, पॉजिटिव बिल्डर, नेशनल बिल्डर्स भी तो हमने एजुकेशन के थ्रू पैदा करने हैं। तो ये मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल तो सारे एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये आपका कंक्रीट आ गई। आपने उसकी जिस्मानी डेवलपमेंट भी करनी है, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू गेम्स, थ्रू जिम्नास्टिक, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू पीटी, ये तमाम चीजें इस चीज में शामिल होती है, फिजिकल डेवलपमेंट। और आखिर में एडजस्टमेंट टू द सोसाइटी। सोसाइटी में जब एक बच्चा एजुकेशन कर रहा होता है या निकलता है, वो अपनी सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करेगा। सोसाइटी इज द मिरर ऑफ द, मिरर है ना सोसाइटी, क्या है, हमारे आमाल का, हमारे एटीट्यूड का, हमारे बिलीव्स का, हमारे माइंडसेट का मिरर है सोसाइटी, राइट। फिर द इकोनॉमिक वेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, हम एक एजुकेशन का एम ये है कि हमने इंडिविजुअल को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, यानी वो अपने लिए जरिए माश इस मुआशरे में पैदा कर सके। ठीक है, इतना स्किलफुल हो कि वो इस मुआशरे में अपना जरिए मुआश पैदा कर सके। देन मेंटेनेंस ऑफ कल्चर आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी, फिर इस एजुकेशन में जो शुरू से हम बातें करते आ रहे हैं, जो स्पेसिफिक कल्चर है उसको सस्टेन करना है, उस कल्चर को प्रिजर्व करना है। और कल्चर को प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है? देखिए, आज हम सारे के सारे जो हैं, वो जो हमारा कौमी लिबास है, जो हमारी कौमी जुबान है, जो हमारी वैल्यूज हैं, हम इसको छोड़ के मगरब की तकलीद करना शुरू कर दें तो हमारा मुआशरा कैसा बनेगा, राइट। वी आर फादरलेस चिल्ड्रंस, जैसे मैंने आपसे उस दिन कहा था कि प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा था, राइट, कि अमेरिकन की नेक्स्ट जनरेशन विदाउट वेडलॉक पॉलिसी होगी, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनमें शादियां नहीं हुई होंगी और जनरेशन होंगी, ऐसी जनरेशन होंगी जिनके माँ बाप ने, जिनके बाप ने कभी पता हुआ कौन है, विदाउट वेडलॉक पॉलिसीज। क्या तस्वर कर सकते हो ऐसा कुछ हो जाए हमारे मुआशरे में? तो कल्चर्स को प्रिजर्व करना इसलिए है कि ये कल्चर सदियों की मेहनत के बाद हम इस सोच तक पहुंचे हैं कि, देखिए ना, आप अक्सर बातें करते हैं कि जी हमारे बुजुर्ग ये कहते थे, तो जो बुजुर्गों के अल्फाज हैं, जो वाकयात हैं, जो हमने मुख्तलिफ तहरीरें बनाई हुई हैं, जो हम कहते हैं जी बुजुर्ग सच कहते थे, हम मुख्तलिफ देते हैं ना, हम लोगों को चलिए इकरा, ये आपकी बात ठीक है, इसमें हम बात करते हैं। तो कल्चर्स की प्रिजर्वेशन जो है ना, कल्चर्स को सिक्योर करना एजुकेशन का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए जो हम आज ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ाई जा रहे हैं बच्चों को, तो फिर देख लो बच्चों का बिहेवियर कैसा निकल रहा है। ठीक है, आप में से जो लोग प्राइवेट स्कूल के, जिनके बच्चे प्राइवेट, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में, अगर आप में से कोई टीचर है तो आप देख ले बच्चों के बिहेवियर, वो टीचर्स क्या कहते हैं,
ठीक है कि जी हम आपको फीस देते हैं, ऐसा हो रहा है ना कि हम आपको फीस देते हैं, यू आर बाउंड टू टीच अस, रिस्पेक्ट खत्म हो गई, राइट? ऐसा हो रहा है ना, अगर आप एग्री करते हैं, जो मैं सुनता हूँ बच्चों के साथ, आप सारे एग्री हो रहे हैं इस चीज से। प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे आज टीचर्स को कहते हैं कि भाई हम तुम्हें तनख्वाह हमारी फीस से मिल रही है। तो अगर हम ये तमाम चीजों से आप एग्री करते हैं ना, तो हमने अब ये हमारा कल्चर तो नहीं था, हमारा कल्चर तो उस्ताद की इज्जत का क्या मकाम था। यू गॉट माय पॉइंट? यूनिवर्सिटी लेवल तक तो से वो सुधरे हुए लोग आते हैं ना, जो नीचे मैट्रिक पर, इंटर पर जो लड़के लड़कियां से आती हैं, आप उनका बिहेवियर देख लें, यू कांट इमेजिन। ठीक है, अब ये तमाम, तो फिर हमारा कल्चर इसी तरह तबाह हो रहा है ना। तो एजुकेशन सिस्टम ने वो ये जो कल्चर बनाया था, हमारा कल्चर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब पढ़ाते थे, सहाबा कैसे खामोशी से बैठे थे। हमारा तो रोल मॉडल ये है ना, हमारा रोल मॉडल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, तैयबा है। उनके जो स्टूडेंट थे वो सहाबा थे, जिन्होंने सारी दुनिया पर हुकूमत की उनकी तालीमात के बाद। ठीक है, तो हम अब वो कल्चर है जो हमने एजुकेशन, एज एजुकेशन प्लानर मैनेजर, जो हमने प्रिजर्व करना है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए, हम 4-5 सूबों के लोग हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी, मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैंने जब भी सुना, या वो पंजाबी है, या वो पठान है, या वो सिंधी है, या वो बलोची है, राइट? नेशनल इंटीग्रेशन ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का। देन इस नेशनल इंटीग्रेशन को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइज करना, दिस नेशनल इंटीग्रेशन आप, राइट? देन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएशन ऑफ ट्रेन मैन पावर। एजुकेशन का वन ऑफ ऑब्जेक्टिव ये है कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपनी काबिलियत के मुताबिक अपने एजुकेशन हासिल कर सके, उसको असेस हो। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए हमने कोटा सिस्टम बनाया हुआ है। डिसेबल का कोटा, वुमेन का कोटा, ट्राइब्स का कोटा, बलूचिस्तान का कोटा, आपने ये सारे कोटे सुने हुए हैं ना, राइट? तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमारी ये स्ट्रेटजीज होती है, ये एजुकेशन में भी है और एम्प्लॉयमेंट में भी है। एंड एट द टाइम हमने क्रिएशन, पॉलिटिकली हमने ट्रेन मैन पावर बनानी है, ताकि वो हमारे मुल्क के इंतजाम को संभाल सके। देखें, एजुकेशन से ही, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी, एजुकेशन है वो पाइपलाइन है ना, जिससे बाकी सारी इंडस्ट्री को सप्लाई हो रही है। CSS या ऑफिसर यहाँ से मिलते हैं एजुकेशन से, फौजी अफसर यहाँ से मिलते हैं, पुलिस यहाँ से होती है, ब्यूरोक्रेसी यहाँ से है, डॉक्टर यहाँ से है, इंजीनियर यहाँ से है, टीचर एजुकेशन सिस्टम दे रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम फ्यूल है बाकी तमाम इंडस्ट्रीज का, सेक्टर्स का। स्किल आपने भी ये देता है, सेमी स्किल भी ये देता है। ठीक है, ये आपस में बहस बंद करो, यहाँ मेरी बातें सुनकर करते रहना। पॉलिटिशियन भी एजुकेशन सिस्टम से हैं, ठीक है? पॉलिटिशियन बाहर से तो नहीं आते ना। देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर हमने डिटेल से बात भी की हुई है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिकली तब बेनिफिशियल हो सकते हैं किसी मुल्क की इकोनॉमी के लिए,
जब उनके अंदर स्किल्स डेवलप हों, या स्किल्ड हों, सेमी स्किल्ड हों, या प्रोफेशनल हों, या वो नॉलेजेबल हों। अब देखिए ना, देखो सिंपल सी बात है, दुनिया में रॉ मटेरियल में जो वैल्यू ऐड होती है ना, वो नॉलेज के थ्रू होती है। ये थोड़ी सी बिजनेस की जुबान, इसको समझने की कोशिश करें तो आपको बात समझ आती है। चले लोकल एग्जांपल हम लेते हैं। आप देखें, ये जो आप खाते हैं लेस, लेस क्या चीज है? जैसे हम जो हमारी थी, हम उसको चिप्स कहते थे ना, आप लेस कहते हैं। ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? और रिमशा, लेस प्लास्टिक नहीं है, लेस पोटैटो। नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगी जब आप अपने एजुकेशन सिस्टम में, आपका एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट लाएगा, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे, मैं आपसे पोटैटो की बात कर रहा था, तो एक लेज जो 50 रुपीज का पैकेट मिलता है, उसमें मेरा हार्डली 1 पोटैटो होता है, राइट? हम उसमें क्या चीज ऐड करते हैं? वैल्यू एडेड क्या है? वो प्रोसेस जिसको हम उसको प्रिजर्व करते हैं फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, और उसको स्पाइसी बनाते हैं, राइट? तो आप बताइए कि ये जो प्रोसेस है, ये वैल्यू एडिशन है ना? तो वैल्यू एडिशन में आपको बताना चाह रहा था, ये 1 सिंपल पोटैटो, ये उस प्रोसेस के तहत हमने इसको एक तो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व किया, एक इसमें क्रंच पैदा किया, एक इसमें स्पाइसी पैदा की। ये 2-3 इसमें फीचर्स है ना, क्रंच, लॉन्ग प्रिजर्वेशन एंड स्पाइसनेस। ये 3 चीजें हमने इसमें वैल्यू ऐड की। ये हमें कैसे पता चला? थ्रू नॉलेज। तो ये मैं आपसे वो कह रहा था कि ये वो वैल्यू एडिशन है, राइट? समझे आप? वरना वो जो आप फ्राइज जिसे आप कह रहे हैं, अब देखें, फ्राइज भी तो पोटैटो ही है ना, तो उसकी जो उसको फ्राई करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, दैट इज वैल्यू एडिशन। और वी आर विलिंगली पे 10, 20, 50, 100 टाइम above the cost of potato. This is value addition. तो हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में ये जो हमारा मेन पावर है ना, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, हमने इसमें वैल्यू एडिशन करनी है, और वैल्यू एडिशन इसकी स्किल्स है। माय डियर स्टूडेंट, बात समझ आई? इसके साथ एग्री करते हो? व्हाट इज वैल्यू एडिशन? अब तो आवाज यार आ रही है ना सबको? वैल्यू एडिशन का पता चल गया ना क्या होता है? ओके, हमने एजुकेशन सिस्टम, एक ऑब्जेक्टिव हमारा डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट होगी थ्रू वैल्यू एडिशन। एग्रीड? अब आगे चले। अच्छा, नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, establishing a social welfare state, providing security, full employment and social justice। ये अब हमारे एजुकेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमने एक ऐसी स्टेट बनानी है जहां हर बंदा सिक्योर हो। सिक्योर से मुराद आपकी इज्जत महफूज हो, आपकी जान महफूज हो, आपका माल महफूज हो। जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का नाम सिक्योरिटी है। फिर आपके साथ सोशल जस्टिस हो, राइट? और किसी रंग, इलाकियाई लसानियत, ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आपको ये कह के ना रिजेक्ट कर दिया जाए कि तुम बलूचिस्तान के हो, तुम सिंध के हो, तुम पंजाब के हो, या तुम पठान। लसानियत बेसिस में नहीं, सोशल जस्टिस हो। हर इदारा आपको एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी एड्रेस करे। लसानी बुनियाद पर या किसी भी पॉलिटिकल बुनियाद पर
किसी मजहब के बुनियाद पर ऐसा कोई तफरीक ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सोशल जस्टिस हो आपके साथ, राइट? creating a dynamic and constantly moving society. हमने एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जो अपने कल्चर को प्रिजर्वेशन के साथ साथ डायनेमिक हो, डायनेमिक मूविंग, स्टैटिक ना हो एक जगह, और डेवलप करे, कॉन्स्टेंटली चेंज आए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. Pedagogical objective of education. Pedagogy mean your teaching learning process. Pedagogy teaching learning process of children. और अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ एडल्ट हो तो उसे कहते हैं एंड्रागॉगी. ठीक है, पेडागॉजी, एंड्रागॉजी. पेडागॉजिकल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट एजुकेशन के क्या है? हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, एक इंसान की बैलेंस डेवलपमेंट. यानी ऐसा ना हो कि हम प्योर उसको रिबोट बना दें, वो कमाई की मशीन बने, उसमें सोशल एथिक्स ना हो, वो फीस लेने के लिए कस्टमर, पेशेंट्स को कस्टमर समझे, राइट? हमारा सिर्फ एक मकसद हो, पैसा कमाना. तो उसमें हार्मोनियस डेवलपमेंट करनी है कि वो इकोनॉमिकल भी डेवलप हो, उसमें एथिक्स भी डेवलप, राइट? गॉट माय पॉइंट? फिर इसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, मेंटली भी, फिजिकली भी, रिलीजियसली भी, इमोशनली. एक बैलेंस पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए आपको फिर जरूरत यहाँ पर आती है साइकोलॉजिस्ट की भी, सोशियोलॉजिस्ट की भी, इकोनॉमिस्ट की भी. ये तमाम सेक्टर मिलके एक इंसान बनाते हैं. एक इंसान को इंसान बनाना सबसे मुश्किल काम है. इट्स अ बिग चैलेंज. ये कोई रॉ मटेरियल नहीं है जिसको आप जिस डाई में डालेंगे उसमें डाल जाएगा. इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है. हमारी फिजिक्स और चेहरे तो शायद एक जैसे हों, हमारी खसलत, हमारी ट्रेंड्स, हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारा बिहेवियर एंड एक्शंस, दीज ऑल आर एंटायरली डिफरेंट, राइट? हम एक माँ बाप की औलाद होके, एक माँ बाप से पैदा होके भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. इंसान को डील करना सबसे मुश्किल काम है, राइट? देन बेटर ऑक्यूपेशन ऑफ लेयर. लेयर मीन वो अपनी खुशी का जो है ना वो कैसे करेगा, लेयर का जो टाइम है उसे वो कैसे एंजॉय करेगा. इट्स अ बिग चैलेंज. ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. सेल्फ रियलाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है ये एक बड़ी हायर कैटेगरीज है जो शायद यूनिवर्सिटी लेवल पर कहीं आती है, नीचे लेवल पर मुश्किल है. सेल्फ रियलाइजेशन इज वो मकाम जहां पे इंसान, जिसे आप कहा, जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर, आपने सुना ना इकबाल का ये शेर, खुदी को कर बुलंद इतना, तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. आपने ये शेर सुना है अल्लामा इकबाल का? तो ये सेल्फ रियलाइजेशन, खुदी को कर बुलंद इतना, राइट? जहां पर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अब्दुल सत्तार ईदी, ये एक्चुअलाइजेशन का था, जहां पर इंसान की ख्वाहिश दौलत और इज्जत ना रहे. ये बहुत बाद में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट? अब्दुल सत्तार ईदी के एग्जांपल्स या कायद आजम की देख ले जिंदगी में, उनको किसी चीज की कमी तो नहीं थी. ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, हमने रिश्ते नाते जो है ये हमारा बहुत बड़ा एहसास है. देखिए आज अगर हम रिश्तों और नातों को अपनी सोसाइटी से निकालते हैं तो जानवरों में और इंसानों में कोई फर्क नहीं रहेगा. हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट सिर्फ रिलेशन कायम है. अगर आज हम ह्यूमन रिलेशन निकाल दें तो फिर हमारी क्या लाइफ.
दिख रही है, डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, बीच में बिजी चली गई तो डिस्कनेक्ट हो गए। तो आप ह्यूमन रिलेशनशिप्स में बात कर रहा था कि अगर हमारी हम सोसाइटी में अपने रिलेशनशिप्स को निकाल दें तो ये सोसाइटी फिर एक जंगल कब बनेगी जहां पर हमें कोई किसी का कोई एहतराम और लिहाज होगा। एजुकेशन सिस्टम ये जो रिलेशनशिप्स हैं इसको फर्दर स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव आपकी इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, ये इसके लिए आपका एजुकेशन सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है विद इन एजुकेशन। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल रिस्पांसिबिलिटी मीन क्रिएशन ऑफ एथिक्स, हार्मनी, सोशल जस्टिस, ऑल दीज थिंग कम इन दिस। पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो एजुकेशन के, वो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि इंक्वायरी माइंड यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आपका फोकस हो। ठीक है, इंक्वायरी माइंड मीन वेन एवर एनीथिंग आपके सामने आए जो स्टूडेंट, तो आपके स्टूडेंट में ये क्वालिटीज हों कि वो उसको इंक्वायर करने की कोशिश करे कि ये क्या है। ठीक है, लॉजिकली, सीक्वेंशियली, लॉजिकली। ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मंतक। ठीक है, वेदर ये काम हो भी सकता है या नहीं। देन उसकी स्पीच क्वालिटीज, राइट, जिसे आज कम्युनिकेशंस कहते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उसकी कम्युनिकेशन क्वालिटीज अच्छी। ठीक है, फिर कम्युनिकेशंस में वो कितना एक्यूरेटली बोलता है, जो वो बोलता है वो अल्फाज या लोगों को समझ आए, उसके मीनिंग्स उसको आए। ठीक है, और किस लैंग्वेज में बात करेगा। हम जो नेशन है ना, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, 3-4 जुबानें समझने वाले लोग हैं। ठीक है, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम बॉस। शायद आवाज कट रही है। अच्छा सर, तो स्पीच मीन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। देन योर चिल्ड्रन शुड रीड, राइट, रीड, पढ़ सके, लिख सके। लिखना और पढ़ना भी तो एक पूरा प्रोसेस है ना। एजुकेशन का जो एक आम आदमी के लिए एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव तो लिखना, पढ़ना, बोलना है। नंबर्स, यहाँ नंबर्स मीन रैशनल, लॉजिक। ठीक, कम्युनिकेशन हियर नंबर मीन लॉजिकली चीजों को देख सके। साइटिंग एंड हियरिंग, ऑब्जर्व कर सके, लिसनर हो गुड। हेल्थ नॉलेज हो, हेल्थ नॉलेज से मुराद इन्वायरमेंटल हेल्थ भी है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है। आपने बहुत मोटा ताजा बच्चा बना लिया, मेंटली इसकी हेल्थ नहीं की, वो तो आप हमारे लिए ही अजाब इलाही बन जाएगा। ठीक है, then your health habits mean exercise, eating habits. These all things are in under the umbrella of health habits. Public habits mean हम पेडागोजी में पब्लिक हैबिट्स जब वो अपने जाएगा माशरे में, तो वो कैसे बात करेगा लोगों के साथ, एक कैसे अच्छा, ये आप कहीं फॉरेन में जाएं तो आपको लोगों को मुस्कुराते हुए चेहरे मिलेंगे। They are always laughing, they are always smiling face, right, positive thinking and smiling face. ये कभी आप इस जो लोग गए होंगे या जो जाते होंगे, आप देखेंगे जब आप किसी से भी कोई बात पूछेंगे मुस्कुराएगा आपकी तरफ, पहले देख के हंसेगा, यानी वेलकम कहेगा। स्माइलिंग फेस में वेलकमिंग नोट होंगे, जैसे पूरा गाइड करेगा। ठीक है, हमारी तरह नहीं, हमारे पैर मुंह लटका होता है, मुझसे क्यों पूछा है, राइट। राइट, फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या होंगी, राइट। अजीब नहीं लगता रिमशा?
कि मुस्कुराता हुआ, इट्स अ स्माइलिंग एंड वेलकमिंग फेस। ठीक है, ऐसे तो आपकी तरफ नहीं हंसते। मैं पूछ रहा हूँ जब आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कोई क्यूरी पूछेंगे, जब आप उनके पास किसी मुश्किल में जाएंगे, तो तब आप देखेंगे वो स्माइलिंग फेस में वेलकम करेंगे आपको कि जी वी आर हियर टू हेल्प यू, टू एडवाइस यू। मेजॉरिटी राइट। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, हम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं आप हम सारे इंसान हैं, हम काम भी करेंगे, हमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी चाहिए। ठीक है, हमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी चाहिए कि हम अपना लेजर टाइम, अब देखिए 2 मिनट में लगाता हूँ, मैं बता देता हूँ। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 8 घंटे काम किया, 8 घंटे सोए, 8 घंटे हमने अपनी फैमिली लाइफ गुजारनी है। अगर फैमिली लाइफ में बीवी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, सिर्फ माँ बाप हैं, दोस्त यार हैं, जो आपके मोहल्लेदार हैं, जो आपकी बाकी रिलेशनशिप हैं, राइट, इन तमाम के साथ हमने गुजारना है। हमने कौन से खेल खेलने हैं। अब देखो ना, खेलों में भी तो अच्छे और बुरे खेल होते हैं, राइट। वो खेल जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हों, वीडियो गेम भी तो एक खेल है, तो सारा दिन खेलोगे तो अपना काम, आंखें खराब करोगे, राइट। रिक्रिएशनल, पॉजिटिव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो आपकी हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाले। ठीक। फिर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, नीड ऑफ स्टूडेंट्स, मेंटल कैपेबिलिटीज। आपका स्टूडेंट मेंटली कितना स्ट्रांग है, हर स्टूडेंट दूसरे से मुख्तलिफ होता है, तो आपके पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव उसकी जो मेंटल थ्रस्ट है ना, उसको पूरा कर सके। एस्थेटिक इंटरेस्ट, देखिए गर्ल्स जो होती हैं वो मैन से ज्यादा एस्थेटिकली बेहतर होती है, उनका लिबास के में, उनके कमरों में, उनके ऑफिसेज, ये तमाम चीजें मर्दों से बेहतर होती हैं, इसलिए कि उनका एस्थेटिक सेंस अच्छा होता है, राइट। डिजाइनर अच्छी हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स, इन तमाम में ये होते हैं, उनका एस्थेटिक सेंस डेवलप करना है। ठीक है। फिर आखिर में कैरेक्टर्स, हमारा पेडागोजी है कि हम अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करें। Respect of human relationship is object of education. Friendship, cooperation, courtesy, ये चीज courtesy होनी चाहिए। Proud, appreciation of the home, को अप्रिशिएट करें। कन्वर्सेशन ऑफ होम, यानी जो आपकी अपनी लैंग्वेज है, वर्नैकुलर लैंग्वेज जिसे कहते हैं, हाई जुबान, उसको आप प्रमोट, होम बनाए, बिगाड़े नहीं। ठीक है। डेमोक्रेसी इन द, listen, if your father listen to your wife and children, if your mother listen your husband, your children's, whether you are young or older। डेमोक्रेसी। वर्क एथिक्स हो, हमने काम के टाइम पे काम करना है। ठीक है, खेल के टाइम खेल, काम के टाइम काम। फिर आपकी ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन कि आप LLB करेंगे तो क्या बनेंगे, क्या फ्यूचर होगा, इंजीनियर बनोगे तो क्या फ्यूचर होगा, डॉक्टर बनोगे तो क्या फ्यूचर होगा। फिर तुम्हारे पास चॉइसेस कितनी है, राइट। फिर ऑक्यूपेशनल एफिशिएंसी के बारे में, हाउ, वेदर यू आर फिट फॉर दिस ऑक्यूपेशन और नॉट। ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट्स के बारे में, पर्सनल इकोनॉमिक्स, क्या इकोनॉमिकली यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू एंटर एनी ऑफ द ऑक्यूपेशंस, राइट। कंज्यूमर जजमेंट, because your client is your student and parents, so their judgment is also valuable. Efficiency in buying, right, and consumer protection, ये तमाम बिजनेस की टर्म्स हैं यहाँ, लेकिन हम इसको इकोनॉमिकली देख रहे हैं। तो बाइंग मीन योर स्टूडेंट्स, और कंज्यूमर का मतलब योर पेरेंट्स। पेरेंट की प्रोटेक्शन, यानी वो क्या चाहते हैं, कैसे आपका बच्चा तरबियत पाए। फिर responsibility, social activities, social understanding, राइट। आप सोशली समझे मुआशरा कैसे काम करता है और कैसे प्रोसेस करता है। लोगों के साथ मिल के चलना है, लोग आपके पीछे नहीं आएंगे, राइट।
आपको लोगों के साथ मिल के चलना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा एजुकेशन का, जिससे आपका माशरा तश्कील देगा। क्रिटिकली चीजों को जज करने की तरबियत देनी है बच्चों को, ठीक है। इससे मुराद अगर मैं आपको फेक इंफॉर्मेशन दूं, इतनी क्रिटिकल वो होनी चाहिए, आप चीज को जज कर सके कि नहीं ये जो कह रहे हैं इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। टॉलरेंस, बर्दाश्त, ठीक है, सब्र जिसे आप कहते हैं। कन्वर्सेशन, हाउ वी टॉक विद ईच अदर। देखिए कम्युनिकेशन तो ये और आगे ना, दूसरों के साथ दूसरों को कैसे आपने कन्विंस करना है, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन के साथ साथ टेक्निक ऑफ स्पीकिंग, राइट। सोशल एप्लीकेशन ऑफ साइंस, जो चीज आपने पढ़ी माशरे की बेहतरी के लिए उसको इस्तेमाल करें। देन योर एजुकेशन शुड प्रमोट वर्ल्ड सिटीजनशिप। आपको मैंने बता दिया, अब हम ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं, तो आप इलाकाई मुल्क से ऊपर हम की ग्लोब की बात करेंगे। अभी देख ले कोरोना की वजह से हम सारी दुनिया एक हो गई, ग्लोबल सिटीजनशिप, राइट। एक चाइना में आया और 2 महीने में पूरी दुनिया में फैल गया। लॉ ऑब्जर्वेंस, योर एजुकेशन सिस्टम टीच द स्टूडेंट एंड टीचर्स के जो मुल्क का कानून है, लॉ है, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। इकोनॉमिक लिटरेसी, ये जो आप रोज पढ़ते हैं ना हमारे मुल्क में कि जी तिजारती खसारा ये हो गया, जीडीपी ये होगी, महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगी, इसका थोड़ा बहुत आप एजुकेशन सिस्टम में चीजों को एड्रेस करें। पॉलिटिकल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप इसलिए जरूरी है ताकि आपके अंदर ये शऊर उजागर हो सके कि आपने सियासी तौर पर किस निज़ाम को करना है, ठीक है। और डिवोशन टू द डेमोक्रेसी, और आप डेमोक्रेटिकली लोगों को टॉलरेट करना सीखें। Dear students, this is for today. We have only 20 seconds in hand. We hope you are understand today topic. अगर कोई तशनगी रह गई है तो हम 5 बजे फिर मिल रहे हैं, उसमें आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है।